Welcome to the today's lecture. Today we will discuss some AC circuits. We will study the purely resistive circuit, that is a circuit which contains only resistance. We will study a purely inductive circuit, that is a circuit which contains only inductor. Then we will study the capacitive circuit, that means a circuit which contains only a capacitor. Before going to the AC circuit analysis, we have to first learn something about the phase diagram. Something about the phase diagram and what is the phase diagram and what is the use of this phase diagram. See here, for example, we have two wave functions, we have two waveforms. One waveform is represented by the equation y is equal to a sine phi 1. For example, we have two waveforms. One waveform is represented by the equation y1 is equal to a sine phi 1, and another is represented by y2 is equal to a sine b sine phi 2. We have two waveforms. One is represented by the equation y1 is equal to a sine phi 1 and another is represented by y2 is equal to b sine phi 2. In your class 11th you have read that this a and b, they are the amplitudes, and this phi 1 and phi 2, they are called phase angles. This is called phase or phase angle. यहाँ पर जो आपका phi 1 है और phi 2 है, इसको हम क्या कहते हैं? फेज, या इसको कहते हैं हम सिंपली फेज एंगल. इन दो फेज एंगल्स की जो डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस. ठीक है ना? Therefore जो आपका फेज डिफरेंस होगा that will be equal to phi 1 minus phi 2. That is the phase difference between these two waveforms. फेज तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है ना? तो यहां पर आप सीधे फेज डिफरेंस जो इन दो वेवफॉर्म्स के दरमियान होगा, that will be the difference between the phase angles. That is एक का फेज एंगल phi 1 है, दूसरे का फेज एंगल phi 2 है, और जो दो फेज एंगल्स के दरमियान डिस्टेंस होती है, उसी डिफरेंस होती है, उस डिफरेंस को हम कहते हैं फेज डिफरेंस. Now let us discuss phase diagram. हमारे पास दो चीजें हैं. एक है अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equal to E naught sin ओमेगा t. सपोज ये है मेरा अल्टरनेटिंग करंट, I is equal to I naught sin ओमेगा t plus phi. Sin omega t plus phi. For example, we have, this is the alternating EMF, E is equal to E naught sin omega t. This is the alternating current, I is equal to I naught sin omega t plus phi. यहां पर जो आपका फेज एंगल है वो क्या है? ओमेगा टी. यहां पर जो है फेज एंगल वो क्या है? ओमेगा टी प्लस phi. ये E जो है, ये है P, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ये I जो है, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ये E naught जो है, ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. ये I naught जो है, ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एक वो डायग्राम जिस डायग्राम से हम दिखा सकते हैं व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट. That diagram is called as a phase diagram. A diagram which gives a phase relation. It shows us what is the phase relation between alternating EMF and alternating current. That diagram is called as phase diagram. ठीक है ना? So पहला जो phase diagram क्या है? Gives phase relation between E and I. Instantaneous value of alternating EMF and alternating current. वो डायग्राम जो हमें दिखाएगी कि E और I के दरमियान क्या फेज रिलेशन है, उस डायग्राम को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? फेज डायग्राम. ये जो फेज डायग्राम है, इस फेज डायग्राम में हम क्या काम करते हैं? जो E और I के पीक वैल्यूज है. व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ E? E naught. What is the peak value of I? I naught. इस डायग्राम में जो पीक वैल्यूज ऑफ E naught and I naught है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोज से. यहां पर एक एरो है, इस एरो को मैं नाम रखूंगा E naught. यहां पर दूसरा एरो है, ये इसको मैं नाम रखूंगा I naught.
इस डायग्राम में जो हमारा क्या है, शाबाश, जो हमारे पीक वैल्यूज है, किस किस के पीक वैल्यूज, करंट और दिस ईएमएफ के जो पीक वैल्यूज है, दीज पीक वैल्यूज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, ठीक है ना। इन ये जो एरोज है, इन एरोज को हम कहते हैं फेजर्स, व्हाट दे आर कॉल्ड एज फेजर्स। In phase diagram, the peak value of alternating EMF, that is E naught, and alternating current, they are represented by arrows. They are represented by arrows, and these arrows are called as what? Phasors. और ये phasors जो है, these phasors are rotating in anti-clockwise direction. इस phase diagram में जो पीक वैल्यू ईएमएफ का होगा, जो पीक वैल्यू करंट का होगा, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोज के साथ। उन एरोज को हम क्या कहते हैं? व्हाट आर दीज एरोज कॉल्ड एज? दीज एरोज आर कॉल्ड एज फेजर्स, एंड दीज फेजर्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जो इन दो फेजर्स के दरमियान, ई नॉट और आई नॉट के दरमियान जो एंगल होगा, दैट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, बिटवीन ई एंड आई। यहां पर फेज डिफरेंस क्या होगी? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, क्या है ये? प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। देखो इसका फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी। इसका फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। फेज डिफरेंस क्या होता है? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी एंड ओमेगा टी कैंसल्स। तो यहां पर जो मैंने रखा, ई एंड आई नॉट के दरमियान जो फेज एंगल है वो क्या है? फाइव। दिस फाइव इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ठीक है ना। यहां देखो ये ईएमएफ मेरा है, ईएमएफ, चूंकि ये फेजर जो है ये रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस ई ने क्या एंगल बनाया है? ओमेगा टी। तो ये ई नॉट है, यहां पर जो एंगल है, एंगल मेड बाय ई नॉट विद द एक्स एक्सिस, दैट विल बी ओमेगा टी। और ये बड़ा एंगल जो होगा, बड़ा एंगल, दिस एंगल, दिस विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस विल बी द एंगल मेड बाय फेजर आई नॉट विद एक्स एक्सिस। तो आपने देखा जो ये फेज डायग्राम है, इसमें जो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एरोज के साथ। These arrows are called as phasors, and these phasors rotate in anti-clockwise direction. देखो ये E नॉट है, मैं यहां से इस y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं। मैं E नॉट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकता हूं। ये जो, इसको रखो नाम यहां से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज A एंड दिस इज B। मैंने E नॉट से इस y x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, मैंने E नॉट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है ना। ये जो OA है, OA, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट अलोंग y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह जो OB है, इट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट ऑन व्हाट एक्सिस? ऑन x एक्सिस। ये जो प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट चाहे x एक्सिस से है चाहे y एक्सिस से है, इट रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E एंड I। इसी तरह I से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे y एक्सिस को, I से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस को, ठीक है ना। ये जो E नॉट का प्रोजेक्शन है किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। देखो अगर हम ये प्रोजेक्शन लेंगे, ये वाली प्रोजेक्शन, अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे y एक्सिस की तरफ, देखो आप निकालो OA। OA क्या है? परपेंडिकुलर। यहां निकालो OA क्या है? ये OA डिवाइडेड बाय OE। OA डिवाइडेड बाय, इसको रखो कुछ नाम, ABC डिवाइडेड बाय OC हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना। वो किसके बराबर हो गया? शाबाश, वो किसके बराबर हो गया? वो आएगा आपको यहां पर देखो, वो आएगा आपको, यहां देखो ना, ये एंगल जो है ये ओमेगा टी है, ये एंगल ओमेगा टी है और ये एंगल भी ओमेगा टी है। वो आप ऐसे आएगा OA डिवाइडेड बाय OC, वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया साइन। एंगल क्या है यहां पर? ओमेगा टी, ठीक है ना। तो OA जो है ये बनेगा OA डिवाइडेड बाय E नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये बनेगा
AO इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, मगर E नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? E के बराबर, लिहाजा मैं O नॉट के बदले क्या लिखूंगा? E। इसका मतलब है जो इस E नॉट का प्रोजेक्शन होगा ऑन Y एक्सिस या ऑन X एक्सिस, वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी वो रिप्रेजेंट करता है E एंड I, E एंड I। अगर साइन होगा तो हम प्रोजेक्शन लेते हैं अलोंग Y एक्सिस, जो देखा आपने। अगर कॉस होगा तो हम प्रोजेक्शन लेंगे अलोंग व्हाट एक्सिस? X एक्सिस, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट दिस फेज एंड फेज डायग्राम्स। अब हम आगे जाएंगे। सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, AC circuit containing only a resistor, AC circuit containing only resistor। हमारे पास एक AC सर्किट है, लेकिन उस AC सर्किट में खाली रेजिस्टर है। देखो, सपोज यहां पर हमारे पास एक AC सर्किट है, it consists of only a resistor having resistance R। सपोज इस AC सर्किट को मैंने अप्लाई किया अल्टरनेटिंग EMF। वो अल्टरनेटिंग EMF किसके बराबर है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने एक AC सर्किट लिया, जो AC सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है ना। मैंने इसको अप्लाई किया एक अल्टरनेटिंग EMF, वो किसके बराबर है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मैं ऐसे लिखूंगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? अल्टरनेटिंग EMF जो मैंने अप्लाई किया एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मींस a circuit having only resistance, a circuit having only resistance, ठीक है। अब देखो यहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, सपोज दैट करंट इज I। यहां देखो भाई, मैंने एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लिया, इस सर्किट को मैंने अप्लाई किया एक अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इस अल्टरनेटिंग EMF से इस सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो गया। सपोज I जो है, I है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट flowing through the circuit, flowing through the circuit। I is equal to instantaneous value of current या instantaneous current। I क्या हमारा? शाबाश, instantaneous current flowing through the circuit। Now, as per Ohm's law, E जो होगा वो होगा IR, E जो होगा वो होगा IR। E किसके बराबर होता है? IR। निकालो I हो गया बराबर फिर E डिवाइडेड बाय R, ठीक है। I किसके बराबर हो गया? E डिवाइडेड बाय R। E का वैल्यू पुट करो E का वैल्यू, तो आपको I बनेगा, क्या बनेगा? शाबाश, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। हम इसको ऐसे लिखेंगे, I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R इंटू साइन ओमेगा टी, E नॉट डिवाइडेड बाय R, ठीक है ना, इनटू साइन ओमेगा टी। देखो यहां पर देखो, आपको ऐसे है I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R साइन ओमेगा टी। असली करंट का फॉर्म क्या आपको? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज दिस I नॉट कॉल्ड? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब है जो E नॉट बाय R है, ये क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। व्हाट इज दिस? What is the peak value of current? I नॉट के बदले यहां पर क्या है? देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम ओमेगा टी को लेंगे जीरो लेंगे, तो साइन जीरो हो गया जीरो, तो ये I जो है ये जीरो निकलेगा, ठीक है ना। अरे भाई, ओमेगा टी को जीरो ले लो, तो I जो है वो निकलेगा E नॉट डिवाइडेड बाय R इंटू साइन जीरो। साइन जीरो इज जीरो, इसके बाद साइन जीरो जीरो तो जीरो बन जाएगा। इसके बाद ओमेगा टी को हम लेंगे पाई बाय 2 यानी 90। जरा निकालो, यहां I होगा बराबर E नॉट डिवाइडेड बाय R इंटू साइन पाई बाय 2। ये निकलेगा I इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R, चूंकि साइन पाई बाय 2 जो है वो है 1। तो ये कौन सा वैल्यू है?
मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सा वैल्यू होगा? ये कम वैल्यू है, ये क्या वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब है जो ये ई नॉट बाय आर है ये किसके बराबर होगा? आई नॉट। तो यहां पर हम सीधे जाएंगे, हियर ई नॉट बाय आर इज इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट। E naught by R is equal to I naught peak value of current, peak value of current. Therefore आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये क्या बनेगी? शाबाश, क्या बनेगी? ये I is equal to E naught by R, क्या लिखूंगा? I naught। ये बनेगा I is equal to I naught sin omega t। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड नाम, ठीक है? तो I आपको निकला I naught sin omega t, ठीक है ना? E जो था वो किसके बराबर था? E नॉट साइन ओमेगा टी। I जो निकला वो क्या निकला? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये निकाला मैंने एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। नाउ मैं देखूंगा इस E और I के दरमियान क्या फेज रिलेशन है। जो ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, जिस सर्किट में खाली रेजिस्टर होता है, मैं देखूंगा उस सर्किट में E और I के दरमियान क्या फेज रिलेशन है। देखो फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I, फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, हम यहां पर देख सकते हैं कि जो E एंड I है, E एंड I जो है, दे आर बोथ द फंक्शंस ऑफ साइन ओमेगा टी। अगर हम E लेंगे वो है बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, अगर हम I लेंगे I है बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब है जो बोथ E एंड I है, दे आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट? साइन ओमेगा टी। E एंड I आर बोथ functions of sin omega t. E and I are both functions of sin omega t. ये भी फंक्शन है साइन ओमेगा टी की और ये भी साइन ओमेगा टी की फंक्शन है। इसमें फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी। इसमें फेज एंगल क्या है? इसका मतलब है जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है उसमें E एंड I जो है दे आर इन फेज। They are in phase. Why they are in phase? Because they have the same phase angle. इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होगी वो क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? यहां पर क्या फेज एंगल है? ओमेगा टी। यहां पर क्या ओमेगा फेज एंगल है? ओमेगा टी, ठीक है ना? दिस एम्प्लाइज E and I are in phase. E and I are in phase. जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, कभी कभी नीट में आ सकता है ये क्वेश्चन, जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसमें E एंड I जो होते हैं, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, वो होते हैं इन फेज, ठीक है ना? और there is a phase difference of zero. There is a phase difference of zero between E and I in a purely resistive circuit. In a purely resistive circuit, जो एक रेजिस्टिव सर्किट होता है, उस रेजिस्टिव सर्किट में जो E और I जो होता है वो होते हैं इन फेज। क्यों होते हैं इन फेज? बिकॉज बोथ आर द फंक्शंस ऑफ साइन ओमेगा टी। देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I इज जीरो, ठीक है ना? फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I इज जीरो। इसका मतलब है कि जो E एंड I है दे विल अटेन the maximum value and the minimum values at the same time. क्यों? इनका जो फेज एंगल है वो है सेम, ठीक है ना? इसका मतलब है they are in phase. In other words, it means that E and I attain maximum and minimum values. Maximum and minimum values at the same time. जो E and I है वो क्या काम करेंगे? शाबाश, वो अटेन करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ एंड सी हाउ दे अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम। क्योंकि मैंने आपको कहा जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इसमें जो E एंड I है दे आर इन फेज
ठीक है ना, because there is no phase difference between them. It means that both E and I, they attain minimum value, they attain maximum value at the same time. See, let me draw the waveform. Waveform which shows that how in a purely resistive circuit E and I are in phase. देखो मैं एक ग्राफ ड्रा करूंगा, ये मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, पूरा देखना इस वक्त। इस साइड में टाइम मैं लूंगा, टाइम, ये टाइम है यहां से, और इस साइड में प्लॉट करूंगा ई आर आई, ई भी प्लॉट करूंगा इस साइड में, आई भी प्लॉट करूंगा इस साइड में। देखो ये ऑरिजिन है, ठीक है, क्या है ये ऑरिजिन, ठीक है। यहां पर मैं लूंगा, सपोज ये है ई नॉट, यानी यहां पर है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। यहां पर है मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ माइनस ई नॉट। देखो रिलेशन कैसे मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। मेरा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां देखो E किसके बराबर ले लिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज पहले मेरा टाइम t जो है वो है 0, टाइम t क्या है 0। मैं देखूंगा E किसके बराबर है, E निकलेगा आपको E नॉट साइन 0, E नॉट साइन 0, क्योंकि t लिया मैंने 0 तो ओमेगा t क्या बन गया 0, तो ये बन गया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0। इसका मतलब है जो आपका E है वो बन गया 0। क्यों बन गया E 0, क्योंकि साइन 0 क्या है 0। इसका मतलब है जब टाइम 0 है, यहां पर जब टाइम 0 है, यहां पर टाइम है, यहां पर लूंगा मैं E, जब टाइम 0 है E 0 है, तो वो ये पॉइंट आएगा, ठीक है, ठीक है ना। आपने कल वेव फॉर्म देखा, ऐसे वेव फॉर्म देखा। यहां देखो, यहां पर जो टाइम होता है वो होता है T/4, यहां पर जो टाइम होता है वो होता है T/2, यहां पर जो टाइम होता है वो होता है T, ठीक है। देखो इसके बाद क्या टाइम आएगा मुझे T/4, ठीक है ना। इसके बाद क्या टाइम आएगा T/4। सपोज यहां पर कहीं टाइम है T/4, यहां पर लेंगे हम टाइम T/4, यहां लेंगे टाइम T/2, ठीक है। अभी हम ये चलेंगे, एक हाफ बनाएंगे, ठीक है। देखो पहले टाइम क्या था यहां पर 0, अब मैंने टाइम क्या लिया T/4, फिर से मैं निकालूंगा, टाइम T लिया मैंने T/4, कैपिटल T/4, तो निकालो E निकालो, E निकलेगा E नॉट, शाबाश, E नॉट साइन ओमेगा इंटू T/4, ठीक है। तो मैंने E निकलेगा मेरे को E नॉट इंटू साइन ओमेगा जो है वो है 2π/T। ओमेगा किसके बराबर होता है 2π/T, कल सिखाया, इंटू T/4, इंटू T/4 है ना। यहां पर चलो 2 1s are 2 2s are 4, T और T कैंसल, तो आपका E निकला E नॉट साइन π/2। वो देखो 2 1s are 2 2s are 4, T और T कैंसल, तो मुझे E निकला E नॉट साइन π/2। साइन π/2 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, साइन 90 क्या होता है 1, तो आपका E किसके बराबर निकला E नॉट। यानी जब आपका टाइम T/4 है उस वक्त जो आपका EMF है वो है मैक्सिमम, यानी EMF का जो कर्व जाएगा वो जाएगा ऐसे ये EMF जा रहा है, ठीक है ना। ये इंक्रीज हो रहा है EMF, पहुंचा T/4 के पास, ये क्या पहुंचा शाबाश, यहां पर इसने क्या हासिल किया, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वो किसके बराबर है E नॉट। इसके बदले क्या है, इसके बदले क्या टाइम क्या है T/2, दे दो भाई T/2 दे दो, T/2 दे दो, तो आपको E निकलेगा बराबर E नॉट साइन ओमेगा के बदले क्या लिखेंगे 2π/T इंटू T/2, ठीक है, इंटू T/2, 2 और 2 कैंसल, T और T कैंसल, आपको E निकला बराबर E नॉट साइन ऑफ पाई। मैंने कल आपको बताया साइन ऑफ एवरी पाई इज 0, साइन ऑफ एवरी पाई इज 0, यानी T/2 पे EMF फिर 0 बनता है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनेगा, यहां 0 आया, ठीक है, ठीक है। E इज इक्वल टू E साइन ओमेगा T एट टाइम इज T इज इक्वल टू 0, आपका E जो है वो 0 है।
एट टाइम t by 4 जो आपका E है वो मैक्सिमम है, वो यहां पर है मैक्सिमम E नॉट के बराबर। एट टाइम t by 2 आपका E जो है वो फिर जीरो आया ना, साइन पाई जीरो, तो इसका मतलब है ये कर्व जो है नीचे आ गई, ठीक है ना, समझ आ रहा। इसके बाद ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा ऐसे, तो यहां पहुंचेगा, यहां पर जो टाइम है ये t है, यहां पर इसका नीचे और ये ऐसे होगा ऐसे, तो आपका ये बन गया वेव फॉर्म ऑफ व्हाट, शाबाश, दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ व्हाट, ये बन गया आपका वेव फॉर्म किसका, ईएमएफ का, है ना, ये किसका वेव फॉर्म बना, ईएमएफ का। अब मैं करंट ड्रा करूंगा, चूंकि करंट भी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट भी क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, सपोज ये आई नॉट है यानी करंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये माइनस आई नॉट है करंट का मिनिमम वैल्यू, एट टाइम t इज इक्वल जीरो करंट भी जीरो होगा, है ना, साइन ओमेगा टी, t बाई 4 पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी यहां पर होगा करंट, तो ऐसे करंट का ग्राफ आएगा, करंट का ग्राफ ऐसे आएगा, जिस टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम है उसी टाइम पे आपका करंट भी मैक्सिमम है, ये रिप्रेजेंट करता है E और ये रिप्रेजेंट करता है I। देखो टाइम जीरो था, ठीक है ना, बोथ ईएमएफ एंड I वर जीरो, टाइम t by 4 था, बोथ ईएमएफ एंड I अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, t by 4 पे ईएमएफ का वैल्यू था E नॉट, ठीक है ना, तो आपके I का वैल्यू क्या था, I नॉट, इट मींस दैट एट द सेम टाइम E and I they attain maximum value. Similarly, at the same time they will attain the minimum value. Because why? Because they are in the same phase. In case of a purely resistive circuit. अब हम फेज डायग्राम ड्रा करेंगे। अब हम फेज डायग्राम ड्रा करेंगे। फेज डायग्राम, फेज डायग्राम क्या करेंगे? फेज डायग्राम। फेज डायग्राम जो आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है उसकी हम ड्रा करेंगे फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मैंने आपको कहा फेज डायग्राम वो डायग्राम है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I। चूंकि आपको पता है जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है उसमें जो E एंड I है, ठीक है ना, वो दे आर इन फेज, E एंड I आर इन फेज। In a purely resistive circuit, E and I are in phase, means there is a zero phase difference between E and I। तो हम इसको कैसे फेज डायग्राम ड्रा करेंगे? देखो बच्चों, देखो बच्चों, चूंकि E and I जो है they are in phase, ठीक है ना, they attain the maximum and the minimum value at the same time। लिहाजा जो फेजर्स होंगे, लिहाजा जो फेजर्स होंगे E नॉट एंड I नॉट दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। E नॉट और I नॉट जो है दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल होगा फेज फाई होगा वो होगा जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि E और I जो है दे आर इन फेज। जब ये फेज में थे, आपने फेज डायग्राम में देखा था अभी, ये था E नॉट और ये था I नॉट, इस एंगल को आप फाई लेते थे। जब ये सेम फेज में है, ये फाई जो है ये जीरो है, फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, तब जो I नॉट और E नॉट है ये पैरेलल होंगे और दे विल एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द फेजर्स E नॉट एंड I नॉट दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा t, making an angle of omega t with x axis in anti-clockwise direction। अब यहां से हम ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये होगा I, चूंकि ये I ये जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ I नॉट along y axis। तो मैंने आपको कहा था जो प्रोजेक्शन होती है I और I नॉट की वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसी तरह यहां पर ये डालेंगे ऐसे, तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा E, चूंकि ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ E नॉट ऑन y एक्सिस, और यहां से यहां तक जो है ये है प्रोजेक्शन ऑफ I नॉट ऑन y एक्सिस। लिहाजा ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ये सारा जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। containing only inductor।
containing only inductor. इंडक्टर जो है बेसिकली ये कॉइल होती है, इंडक्टर। यानी अब मैं पढ़ूंगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या पढ़ूंगा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। वो एसी सर्किट जिस एसी सर्किट में खाली इंडक्टर होगा। मैं देखूंगा इस सर्किट में जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट है, इनके दरमियान क्या फेज रिलेशन है। वहां देखा, वहां जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें ई एंड आई जो है दे आर इन द सेम फेज, ठीक है ना। देयर इज अ जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब हम यही फेज डिफरेंस, यही फेज रिलेशनशिप निकालेंगे बिटवीन ई एंड आई किस सर्किट में? एक उस एसी सर्किट में जिसमें हमारे पास खाली एक इंडक्टर होगा। सपोज यहां पर मेरे पास एक एसी सर्किट है। दिस एसी सर्किट contains an inductor of inductance L. मैंने एक AC सर्किट लिया which contains only an inductor having inductance L. Suppose इस AC सर्किट को मैंने अप्लाई किया एक अल्टरनेटिंग EMF। वो अल्टरनेटिंग EMF क्या है? E is equal to E naught sin omega t। ठीक है बच्चों, E is equal to E naught sin omega t is an alternating EMF which is applied to a purely inductive circuit. That means an AC circuit containing only inductor. शाबाश। E है बराबर E naught sin omega t। इसको मैं फर्स्ट रखूंगा। यह है alternating EMF जो मैंने अप्लाई किया एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट को। इस alternating EMF से इस सर्किट में करंट जाएगा। वो कौन सा करंट होगा? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मींस चेंजिंग करंट, ठीक है ना। I is equal to alternating current flowing through the circuit, at any instant of time, I जो है ये है अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होगी इस सर्किट में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ दिस अल्टरनेटिंग करंट विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर L। दिस अल्टरनेटिंग करंट यानी चेंजिंग करंट, कभी ये मैक्सिमम बनेगा, कभी ये मिनिमम बनेगा। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। जब ये करंट इस कॉइल में पास हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। सपोज उसका नाम मैं रखूंगा E डैश ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। आपने देखा है whenever the current through the coil changes, an induced EMF is set up in a coil, ठीक है ना। This property of a coil by virtue of which an induced EMF is set up in a coil, when the current in the coil changes, that is called as what? सेल्फ इंडक्शन। जैसे ही ये अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट इस इंडक्टर में पास होगा, इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है ना, ड्यू टू व्हाट? सेल्फ इंडक्शन। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये अपोज करेगा अपने काज को। यहां पर जो इसका काज है दैट इज ग्रोथ और डिके ऑफ करंट। Therefore, this induced EMF set up across the inductor will oppose the increase or decrease of current. ठीक है ना। What is E dash? E dash क्या है? शाबाश। E dash is induced EMF set up in the inductor due to self induction, due to self inductance, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन लिख सकते हैं। E dash जो है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट अप इन द इंडक्टर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू Farad-Lenz's लॉ, जो E डैश होगा ये होता है बराबर -L di/dt। जो E डैश होता है ये होता है बराबर -L di/dt, where L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ऑफ द इंडक्टर। नेगेटिव साइन दिखाता है दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the rate of change of current, it opposes its cause
that is the growth or decay of current. Now, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में दो ईएमएफ है, ठीक है ना? तो इन ईएमएफ्स को मैं किस लॉ से ऐड करता हूं? किरचॉफ्स लॉ से. नाउ as per Kirchhoff's voltage law, KVL, Kirchhoff's voltage law, वो क्या कहेगा? Algebraic sum of EMFs in any closed circuit is equal to algebraic sum of products of currents and resistances occurring in that circuit. ठीक है बच्चों, यहां पर हमारे पास दो है. क्या क्या है? एक ईएमएफ क्या है? E, दूसरा क्या है? E डैश. तो हम लिखेंगे therefore E प्लस E डैश, E प्लस E डैश है ना, सम उनका algebraic sum of EMFs. एक है alternating EMF, दूसरा है induced EMF. ठीक है ना? तो E प्लस E डैश होगा I, करंट जा रहा है, कितना जा रहा है करंट? I, ठीक है ना? रजिस्टर है सर्किट में कहीं, तो R के बदले क्या लिखूंगा मैं? 0. Why I will add 0? Because there is no resistor in the circuit. तो ये बनेगा E प्लस E डैश इज इक्वल टू 0, और ये बनेगा E इज इक्वल टू माइनस E डैश. यहां पर मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया, वो कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ शाबाश प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस, यानी समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR. समेशन ऑफ E हो गया E प्लस E डैश, समेशन ऑफ IR हो गया I इंटू, चूंकि वहां पर रेजिस्टर कोई नहीं है तो यह I इंटू 0, तो आपका E निकला किसके बराबर? E डैश के बराबर. बेसिकली हमें ये करंट निकालना है, बाद में हमें करंट और E के दरमियान फेज रिलेशन देखनी है. ठीक है ना? अब इस इक्वेशन में E का और E डैश का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है ना? पुट वैल्यू ऑफ E एंड E डैश इन सेकंड, इसको सेकंड नाम रखेंगे. लगा भाई E का वैल्यू. E के बदले जो वैल्यू है वो है E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस, और फिर ये अपना माइनस L डी आई बाई डी टी, माइनस L डी आई बाई डी टी. एक तो ये माइनस है, एक तो ये माइनस है, दूसरा तो ये माइनस आया, ये माइनस. ठीक है ना? तो माइनस इंटू माइनस, तो ये बनेगा E नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज L डी आई बाई डी टी. यहां लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे, ये हो गया L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये हो गया डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई L, E नॉट डिवाइडेड बाई L. ठीक है? साइन ओमेगा टी. डी आई निकालो, ये होगा डी आई इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी आई होगा E नॉट डिवाइडेड बाई L साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. चूंकि मुझे करंट निकालना है, मैं इसको सीधे इंटीग्रेशन करूंगा. ठीक है ना? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides we get, हमें निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी. हमें निकला इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E नॉट डिवाइडेड बाई L साइन ओमेगा टी डी टी. आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ I जो हो गया वो हो गया I, इंटीग्रेशन ऑफ I क्या हो गया? I इज इक्वल टू E नॉट बाई L कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बाहर आएगा. ये होगा E नॉट बाई L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. I होगा E नॉट बाई L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. आगे जाएंगे, यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस. ठीक है? ये बनेगा I इज इक्वल टू E नॉट बाई L इंटू शाबाश माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा.
चूंकि इंटरनल इंटीग्रेशन हो जाएगी ओमेगा टी की, वो होगा ओमेगा, वो ओमेगा डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है बच्चा। ओमेगा जो है वो बाहर आएगा, तो ये निकलेगा I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ऐसे लिखूंगा मैं, I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ओमेगा को बाहर लिया, ठीक है, इनटू शाबाश माइनस कॉस ओमेगा टी। जो मेरा ईएमएफ है वो साइन में है, जो मेरा करंट निकला वो किस में निकला, कॉस में। मैं इसको चेंज करूंगा, इसको मैं साइन में रखूंगा। हमें ऐसे पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। मेरा कॉस थीटा है, मैं लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा I इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिखूंगा I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ठीक है, इनटू माइनस टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। देखो बच्चों ये है माइनस कॉस थीटा, थीटा के बदले क्या है ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, यानी साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी हो गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो मैंने कॉस को कन्वर्ट किया किस में, साइन में, क्योंकि मेरे वहां जो ईएमएफ है वो किस में है, साइन में। देखो एक फार्मूला है, फार्मूला ऐसे है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस, यानी ये माइनस जो है ये मैं यहां ले सकता हूं, ठीक है। मुझे क्या बनेगा, मुझे बनेगा I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, ठीक है। ऐसे लिखूंगा मैं साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, शाबाश। साइन ऑफ, ये माइनस अंदर ले लिया ना, माइनस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। जब माइनस से मल्टीप्लाई लगेगा पाई बाय 2 माइनस बनेगा और ओमेगा टी क्या बनेगा प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई दे दो, ये बनेगा माइनस पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो प्लस वाला जो है इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये बनेगा I इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बात समझ आ रही, I बनेगा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बट जैसे मैंने सिखाया आपको, जो ई नॉट बाय ओमेगा एल है वो होगा आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट। जब मैं इसको 0 वैल्यू टी बाय 4 वैल्यू दे दूंगा तो मुझे निकलेगा एक वक्त मैक्सिमम। तो ई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा एल जो है वो किसके बराबर है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई नॉट। तब क्या बनी ये इक्वेशन, जरा ये इक्वेशन क्या बनी, मुझे शाबाश बोलो, ये इक्वेशन क्या बनी। ये इक्वेशन मुझे बन जाएगी, ये बनेगी मुझे I इज इक्वल टू आई नॉट, शाबाश शाबाश, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये निकला मुझे एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये किसके बराबर है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। रेजिस्टिव सर्किट में ये सीधे निकली थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां निकली आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब मैं थोड़ा सा इनको कंपेयर करूंगा, क्योंकि अब मुझे फेज रिलेशन पढ़नी है। फेज रिलेशन के लिए मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, किस किस को, ईएमएफ को और करंट को। देखो बच्चों, फेज रिलेशन, फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, बिल्कुल याद रखना है। अगले बड़ा क्वेश्चन आ रहा है परसों, उसमें मुझे पढ़ाना है सारा। फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, ई एंड आई किस सर्किट में, इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई। यहां देखो, ई जो था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये था अल्टरनेटिंग ईएमएफ जिसको मैंने अप्लाई किया था एक सर्किट में, एक सर्किट को जिस सर्किट में हमें खाली इंडक्टर था, यानी प्योरली इंडक्टिव सर्किट को मैंने ये ईएमएफ लगाया था।
इस ईएमएफ से उस सर्किट में एक करंट फ्लो हो गई, वो फ्लो हो गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन शाबाश ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. दिस वाज द करंट flowing through that purely inductive circuit. अगर मैं इन दो को कंपेयर करूंगा, ईएमएफ का फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी. करंट का फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ख्याल रखो, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. माइनस होगा पीछे जाना, प्लस होगा आगे जाना. अगर ये होता प्लस पाई बाय 2 तब करंट आगे जा रही थी. ये क्या है? माइनस पाई बाय 2. करंट क्या जा रही है? पीछे जा रही है, पीछे जा रही है. इसका मतलब है जब इन दो इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, वी फाइंड दैट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट lags behind the EMF by a phase angle of pi by 2. है ना? Current lags the EMF by a phase angle of pi by 2, or EMF leads the current. EMF leads the current, आगे है उससे by a phase angle of pi by 2. या E और I के दरमियान क्या है फेज डिफरेंस? जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें जो E एंड I के दरमियान फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई बाय 2. बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पाई बाय 2. हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड we find that in a purely inductive circuit, current lags behind the EMF. Current lags behind the EMF E. Current I lags behind the EMF E by a phase angle of pi by 2. Current lags the EMF by a phase angle of pi by 2, or EMF leads the current by a phase angle of pi by 2, or there is a phase difference. There is a phase difference of pi by 2 between E and I in a purely resistive circuit, in a purely inductive circuit. There is a phase difference of कितना है शाबाश? कितना है? There is a phase difference of what? Pi by 2 between E and I in a purely resistive circuit. अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, हम ग्राफिकली बताएंगे इसका मतलब क्या है. इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, यहां पर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा. ये मैंने टाइम लिया, ये देखो यहां से टाइम है t, ये t है इन सेकंड्स, या जो आप करोगे t इन सेकंड्स. यहां से हम ड्रा करेंगे EMF, यहां से ड्रा करेंगे, यहां से भी है. सपोज यहां पर जो ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF E नॉट, ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ EMF, ठीक है, माइनस E नॉट. यहां से हम करंट भी ड्रा करेंगे RI, यहां से हम करंट भी ड्रा करेंगे, करंट को भी ड्रा करेंगे, EMF को भी ड्रा करेंगे, ठीक है. अब देखो हम कैसे ड्रा करेंगे. पहले हम ये लिखेंगे E किसके बराबर है? E नॉट साइन ओमेगा टी. E का देखेंगे पहले. मैंने आपको दिखाया था जब t 0 होगा, ये बनेगा E नॉट साइन 0. साइन 0 क्या होगा? 0. उस वक्त जो आपका EMF है वो यहां पर है, 0 पे है, ठीक है, ठीक है. उस वक्त EMF मेरा है वो 0 पे है, ठीक है. अब देखो यानी यहां ऐसे करेंगे T0 EMF 0. उसके बाद मैंने दिखाया था जब टाइम t था T/4, तो उस वक्त मेरा EMF जो था वो था मैक्सिमम, वो किसके बराबर था? E नॉट. वो दिखाया था ना. तो ये ग्राफ ऐसे जाता. जब T/2, तो यहां पर T/4 था, T/4 यानी जब टाइम T/4 है, जब टाइम T/4 है उस वक्त क्या है EMF? EMF क्या है?
मैक्सिमम, जब टाइम जीरो है, ईएमएफ जीरो है, यहां पर आपका टाइम जो है वो है t/2, फिर यहां से नीचे जाएगा ईएमएफ, तो यहां से ऐसे आएगा, ये है टाइम t, ये फुल साइकिल के लिए यहां टाइम t है। अब देखेंगे हम करंट, जरा करंट का एक्सप्रेशन देखो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस π/2। हम t/4 पे देखेंगे करंट कितना होगा। t/4 पे जो ईएमएफ है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम। हम देखेंगे t/4 पे क्या करंट आएगा, देखो क्या आएगा, ये बनेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू 2π/t, और है ना 2π/t इंटू, शाबाश, टाइम का वैल्यू क्या दूंगा t/4। अरे मैं देखूंगा t/4 पे जो ईएमएफ मैक्सिमम है वहां पर करंट क्या है, तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t ओमेगा का वैल्यू इंटू स्मॉल t का वैल्यू t/4, ठीक है, माइनस π/2, ठीक है, माइनस π/2। तो करो भाई, ये आएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ, देखो t और t कैंसल, 2 1 2 2, ये निकलेगा साइन π/2 माइनस साइन π/2। वो कितना आया शाबाश, वो आया I इज इक्वल टू I नॉट साइन 0। साइन 0 क्या है, 0, यानी वहां पर आपका I जो है वो क्या निकला, यानी t/4 पे मेरा I जो होगा वो होगा 0। इसका मतलब है 0 पे मेरा करंट जो है वो होगा, यहां पर करंट मेरा ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा करंट। इसका मतलब है जिस वक्त ईएमएफ मैक्सिमम है उस वक्त करंट क्या है, 0, ठीक है ना। इसका मतलब है जो ईएमएफ है इट अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू क्वार्टर साइकिल, ये है ना, ये हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल है, ये क्या है भाई, क्वार्टर साइकिल। इट मींस ईएमएफ अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू क्वार्टर साइकिल अर्लियर देन करंट, है ना। t/4 कौन सा साइकिल है भाई, क्वार्टर साइकिल है ना, चौथा हिस्सा। ये है फुल साइकिल, ये है हाफ साइकिल, ये हो गया 1 2 3 4, तो ये कौन सा हिस्सा है, 1/4 पार्ट है ना, ये साइकिल का कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट। तो इसका मतलब है जो आपका ईएमएफ है इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ईएमएफ अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू क्वार्टर ऑफ साइकिल, यानी t/4 अर्लियर देन करंट, ठीक है ना। तो दिस इज द फेज रिलेशन बिटवीन E एंड I इन ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब हम फेज डायग्राम ड्रा करें, डायग्राम बनाऊंगा। जो ये फेज रिलेशन मैंने निकाली E एंड I के दरमियान इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इस फेज रिलेशन को मैं एक फेज डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो भाई, यहां पर मैं फेज डायग्राम बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो बेटा, यहां पर E जो है वो है E नॉट साइन ओमेगा t, I जो है वो है I नॉट साइन ओमेगा t माइनस π/2, यानी करंट जो है वो लैग करता है, वो पीछे है, ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ को पीछे है, कितना, बाय फेज एंगल π/2। अब E है E नॉट साइन ओमेगा t, लिहाजा जो मेरा फेजर E है वो फेजर E जो E नॉट जो है, फेजर E नॉट वो एंगल बनाएगा ओमेगा t, किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द फेजर E नॉट मेक्स एन एंगल ऑफ ओमेगा t विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि फेजर जो है ये रोटेट करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो करंट हमारी है, अगर वो इससे आगे गई होती होगी तो वो ऐसे आती, वो इससे पीछे कि इससे आगे, इससे पीछे। सिंस द करंट लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2, लिहाजा मेरा फेजर I नॉट जो होगा वो यहां होगा। दिस इज फेजर I नॉट, बिकॉज ये करंट जो है वो लैग कर रही है। ये फेजर I नॉट जो है ये बनाएगा एंगल ऑफ π/2, एंगल ऑफ π/2 विद फेजर E नॉट इन व्हाट डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज दिखाता है जो I नॉट है ये पीछे है, कितना है पीछे E नॉट को, π/2। यहां पर जो मेरा फेजर E नॉट है
फेजर ई नॉट ने कितना एंगल बनाया, शाबाश, इसने एंगल बनाया कितना बच्चों, इसने एंगल बनाया ओमेगा टी, किसके साथ, किसके साथ, शाबाश, किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, इसने एंगल बनाया ओमेगा टी किसके साथ बच्चों, शाबाश, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, इन व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन चूंकि करंट जो है वो लैग करती है बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2, लिहाजा जो फेजर आई नॉट होगा वो एंगल बना रहा होगा पाई बाय 2 किसके साथ, फेजर ई नॉट के साथ, इन व्हाट डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ये पीछे है। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जो आपका होगा ये होगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि ये सारा एंगल जो है ना, सारा एंगल जो है पाई बाय 2। अब जो करंट फेजर आई नॉट ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो कितना है, पाई बाय 2, पाई बाय ये ऐसे है ना, ओमेगा, ये क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यहां पर मैं एंगल बताऊंगा वो क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। समझ आया ना, दिस इज द फेज डायग्राम फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें थोड़ा और